नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो, खुश हो। With keeping in this mind, let's kickstart today's video with the beautiful lines of Lord Buddha, which reads, "Believe on nothing doesn't matter where you have read it, doesn't matter where you have listened it, even if I am saying it until and unless it appeals to your own reasoning." इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के ऊपर भरोसा मत करना, भले ही आपने उसको कहीं पढ़ा हो, भले ही आपने उसको कोई सुना हो। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज के ऊपर भी भरोसा मत करना जब तक वो चीज आपकी तर्क की शक्ति को सही नहीं लगे। तर्क की शक्ति इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू रीजन, इट इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। So this is the third video in the series of Basics of Happy and Healthy Life. ये तीसरा वीडियो है इस बेसिक्स ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ का। मैंने कहा था कि आपको अगर आई गिव यू दिस एग्जांपल, मैंने कहा था कि अगर आपको फसल अच्छी चाहिए, अच्छे क्वालिटी की फसल अगर चाहिए, तो आप जो बीज बो रहे हो उसका क्वालिटी अच्छा होना जरूरी है। सो आई टोल्ड यू, अगर आपका मेंटल डेवलपमेंट का क्वालिटी अच्छा है, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल डेवलपमेंट, इफ यू आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, if you are taking a good amount of rest, and if you are reading, then its natural outcome will be happy and healthy life. So today we will discuss sleep. By the end of this video आपको दो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि why sleep is a superpower, why sleep is so important in every human being, especially in life of student। एक स्टूडेंट की लाइफ में स्लीप का क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्लीप इन स्टडीज, स्टडीज में स्लीप कैसे इम्पैक्ट डालता है। यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ही इज अ वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट एंड sleep expert. He said in his book, sleep is something which can't be replaced and dosed or ignored. ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई रिकमेंड ईच वन ऑफ यू टू गो एंड रीड दिस कि स्लीप का क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में। आई टेल यू इन अ नटशेल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्लीप। सारी चीज़ें स्लीप के बारे में आज बताऊंगा। Okay, he is a Russian scientist, Dmitry Mendeleev, and he said, just read this what is written over here. I saw in a dream a table where all elements fell into place as required. मतलब actually Mendeleev was working on this periodic table. He wanted to develop a periodic table. वो periodic table को develop करना चाहते थे। periodic table is in chemistry। जिन लोगों को नहीं पता है, chemistry में ऐसा table होता है जहाँ पे सारे elements होते हैं। that's it, बाकी कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। Now he was working tirelessly. He spent many sleepless nights for development of this periodic table, but he was not able to develop. But one day what happened, एक दिन क्या हुआ, he took a good amount of rest, he slept very nicely and he saw something in his dream. उसके ड्रीम में, उनके ड्रीम में उन्हें एक पीरियडिक ऐसा दिखा, कुछ भी सारे एलिमेंट्स एक जगह पे फिक्स्ड हो गए हैं। and when he woke up in the morning and he started working, automatically he came up with the periodic table, that is called a modern periodic table. So what actually happened that make him develop a periodic table which he was not able to develop previously when he was not taking a proper sleep? He is a Russian scientist. He developed Frederick Kekule. He developed the structure of benzene. He gave the structure of benzene. He also said he saw something in his dream that this is a snake. Snake is biting his own tail. उसने बोला था कि मैंने ऐसा कुछ देखा था मेरे सपने में जहाँ पे एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा था। तो ऐसा स्ट्रक्चर उसने कुछ तो देखा। When he woke up in the morning and he started working, he gave the structure of the benzene. So what actually happened with these people and that make them give these structures? ऐसा क्या होता है जब हम सोते हैं तो ये सारी चीजें होती है। we'll see. Now whenever you are asleep, जब आप सोते हो, एक्चुअली जब आप सोते हो तो आपका माइंड एक्चुअली काम करता है। when you are sleeping it doesn't mean your mind is also sleeping। आप जब सोते हो तो आपका माइंड काम करता है। Now when your mind is working, ये तीन प्रोसेसेस होती है, यूनिटाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। देयर इज नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस। एक नटशेल में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ इन तीनों प्रोसेस को हम मेमोरी कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन मतलब कुछ नहीं होता है,
इट इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, या वर्किंग मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना इज नथिंग बट द मेमोरी कंसोलिडेशन। आप उसको ऐसे आसान तरीके से याद रख सकते हो। दिस इज योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो ये कुछ समय के लिए वर्किंग मेमोरी में रहता है आपके। दिस इज योर वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी में चीजें रहती है। देयर आर 4 स्लॉट्स इन योर वर्किंग मेमोरी। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। सो जब जो भी आप पढ़ते हो आपका कुछ समय के लिए यहाँ पे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, देन इट गेट ट्रांसफर टू नियो कॉर्टेक्स। नियो कॉर्टेक्स ये आपका पूरा जो आपका जो स्काल्प है, द एरिया अंडर योर स्काल्प इज नथिंग बट योर नियो कॉर्टेक्स। ये नियो कॉर्टेक्स का एरिया है। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द नेम्स, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द नेम्स, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट। I'll make the explanation as easy as ABC, so don't worry about it। आपको ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिंपली प्रोसेस को याद रखना कि ऐसा ऐसा कुछ तो भी होता है। नाउ दिस इज नथिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी का कोई एक जगह नहीं होती है कि एक जगह पे लॉन्ग टर्म, ऐसा हम नहीं बोल सकते लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है करके। दिस क्रॉस इंडिकेट्स द प्लेसेस ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये कहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। बट ये कब होता है? गेस व्हाट, व्हेन यू स्लीप। जब आप सोते हो तब ये चीज होती है। जो आप जो भी पढ़ते हो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है व्हेन यू एक्चुअली स्लीप। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आप सोओगे नहीं, इफ यू डोंट टेक अ प्रॉपर रेस्ट, दिस प्रोसेस बी सक्सेसफुल? नो, दिस प्रोसेस विल बी कॉम्प्रोमाइज। ये प्रोसेस ढंग से होगा ही नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि जल्दी उठने से या कम सोने से पढ़ाई अच्छी होती है? नो, if you are studying at the cost of, if you are studying at the cost of the sleep, it would be very expensive, it will cost you a lot। मतलब it will defeat a very purpose of the sleep। मतलब अगर आप सोते नहीं हो और सोने से बेहतर अगर आपको पढ़ाई लगती है तो बेटे आप यू आर फूलिंग आउट ऑफ योर सेल्फ। आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो क्योंकि आपको ये मैकेनिज्म ही नहीं पता है। And trust what, no one talks about it। मुझे when I was in my college life, when I was in my student life, मैं भी ऐसा ही करता था। अगर आप एग्जाम के पहले सारी रात जाग के पढ़ाई करते हो विद थॉट इन माइंड कि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा या करूंगी, यू आर रॉन्ग, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट मेकिंग, यू आर फुलिंग आउट ऑफ योर सेल्फ। दैट्स इट। यही मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी का ट्रांसफर लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। बट कब होता है? व्हेन यू आर टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप। अगर यही नहीं लोगे, दिस एंटायर प्रोसेस विल गेट कॉम्प्रोमाइज। ये पूरी प्रोसेस होगी ही नहीं, यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन योर टेस्ट। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। अगर आप एग्जाम के पहले, जिस दिन एग्जाम है उसकी पहले रात भर जगते हो और पूरा क्रैमिंग करते हो, जिसको रट्टा मारना बोलते हैं, पूरा रोट मेमोराइज करते हो कि नहीं आज पूरा। आई हैव सीन नंबर ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, मैं भी आई वाज इन देम, इनफैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंडिया डू दिस थिंग कि सारी रात जगकर पढ़ाई करना विद थिंकिंग दैट दे विल परफॉर्म गुड इन द टेस्ट। नथिंग इज लाइक दैट। हमें ये चीजें पता नहीं है, नो वन टॉक्स अबाउट इट। अगर आप ऐसा कर रहे हो, डोंट डू इट बिकॉज यू आर जस्ट फुलिंग आउट ऑफ योर सेल्फ। आप खुद को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो। नथिंग इज मोर देन दैट। सो स्लीप इज नॉट डिफरेंट दैन लर्निंग। स्लीप पढ़ाई से कुछ अलग नहीं है। इनफैक्ट इट इज द लर्निंग विथ आवर आईज क्लोज्ड। Sleep, it is a part of the process, it is not only the part of the process, it is the learning। वही एक पढ़ाई है with our eyes closed। because I told you, आप सोते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका माइंड सोता है, आपका माइंड काम करते रहता है इन बैकग्राउंड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टेस्ट है एंड टेस्ट में आपको, इफ द टेस्ट कंटेन्स हेवी मेमोरी रिटेंशन, अगर मतलब कोई टेस्ट है आपका जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे फार्मूलीज हो या स्ट्रक्चर्स हो या फिर कोई फॉरेन वोकेबलरी वाला हो, तो इट्स बेस्ट, यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए
इट्स बेस्ट टू गो टू बेड एट योर यूजुअल टाइम, जो आपका रूटीन है वो टाइम पे आपने सो जाना चाहिए, एंड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग टू रिवाइज द थिंग्स. सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी. कब? जब आपका टेस्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन अ हेवी मेमोरी रिटेंशन. हेवी मेमोरी रिटेंशन मतलब अगर आपके टेस्ट में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ रही है जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, जिनको कोई ये नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको चीजें सिर्फ याद रखना पड़ता है, तो इट्स बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? बेटर स्ट्रैटेजी इज टू गो टू स्लीप ऑन योर यूजुअल टाइम. जो आपका यूजुअल टाइम है उस समय सो जाना, एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द रिवाइज. बट अगर आपका टेस्ट, अगर इफ योर टेस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैथ्स और अदर साइंस सब्जेक्ट, या फिर इफ यू आर लुकिंग फॉर क्रिएटिविटी, या फिर कोई स्पोर्ट्स है, अगर आप लॉन्ग जंप करना, फॉर एग्जांपल लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर डक करने की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप स्पाइक करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो द बेटर स्ट्रैटेजीज इस समय में क्या करना चाहिए? द बेटर स्ट्रैटेजीज इन सारी चीज़ों का मेमोरी कंसोलिडेशन जो है, मैथ्स, क्रिएटिव, साइंस या स्पोर्ट्स, इन चीज़ों का ये जो इंफॉर्मेशन होती है इनका मेमोरी कंसोलिडेशन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग. इनका मेमोरी कंसोलिडेशन होता है मॉर्निंग में. सो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गेट अप अ लिटिल बिट लेट देन योर डेली टाइम. मतलब जो आपका डेली का समय है, फॉर एग्जाम्पल आप डेली 6 बजे उठते हो, तो उस समय क्या करना, थोड़ा 20 मिनट्स या 15 मिनट्स लेट. फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आई कैन से, मतलब आप 6:20 को उठ सकते हो इंस्टेड ऑफ 6 इन द मॉर्निंग. सो इट विल हेल्प यू एंड यू कैन रीप अ मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. सो जस्ट इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो मेक श्योर दैट यू गो एंड rewind the video, watch it again and again and understand this, because it is very important. इसके बारे में कोई बात नहीं करता है. Now most of the memory consolidation जो होता है वो first 2 hours of the sleep, first 2 hours एंड लास्ट 1.5 hours ऑफ द स्लीप में होता है. सबसे ज़्यादा मेमोरी कंसोलिडेशन जो होता है वो कब होता है? पहले आप जब सोते हो तो उसके पहले 2 घंटे और आखिरी उठने के पहले के 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मेमोरी कंसोलिडेशन होता है. तो आपने देखा होगा, इफ़ अ ड्रंकन पर्सन स्लीप ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग वॉट एवर हैपेंड लास्ट नाइट. अगर कोई बेवड़ा अगर सो जाता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता है व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द लास्ट नाइट. क्यों उसको याद नहीं रहता है? क्यों? बिकॉज दिस फर्स्ट 2 hours आर कॉम्प्रोमाइज. मतलब ये जो पहले 2 घंटे होते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन के, इसके केस में, इस ड्रंकन पर्सन के केस में क्या हो जाता है, वो प्रोसेस ठीक से नहीं होता है. इसीलिए उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती कि कल एक्चुअली क्या हुआ था, मैं कहाँ था, किससे झगड़ा किया, क्या किया. दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. दिस इज द रीज़न. नाउ अगर आप ढंग से सोते नहीं, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग. या आपकी डिसीजन मेकिंग में भी अफेक्ट करेगा. जस्ट सी इन दिस, ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपका एमिगडाला है. एमिगडाला इज नथिंग बट योर इमोशंस का, इट इज़ अ इमोशनल सीट ऑफ ब्रेन. यहाँ पे सारी आपकी इमोशंस होती है. नाउ जब आप सोते हो तब आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मैंने कहा था डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है. यू कैन रिमेंबर इट विद एन एनालॉजी. आप उसको एक एनालॉजी से याद रख सकते हो. जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज लाइक अ ब्रेक, मतलब इमोशंस है, तो अगर आप इमोशनल हो रहे हो तो उसके ऊपर आपको रोकने का काम किसका है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का. बट अगर आप सोते नहीं हो, you can see there is a good connection between, strong connection between prefrontal cortex and amygdala when you are sleeping. but अगर आप सोते नहीं हो तो there is no weaker connection between the prefrontal cortex and the amygdala. इसका मतलब क्या हो गया? you cannot regulate your emotion properly, you cannot make your emotional makeup. आपका emotional makeup खराब हो जाएगा and you will not able to take decision properly, you will not able to maintain the balance between logic and emotion. लॉजिक और इमोशन के बीच का जो बैलेंस होगा वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे. सो दिस इज द, दैट्स वाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए स्लीप इंपॉर्टेंट होता है. नाउ जस्ट मुझे एक एग्जांपल बताना. फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी है, तो आप घर में नो डाउट शादी है तो सब साफ सफाई वगैरह करते हो. तो मुझे एक बात बताना, क्या आप सारे गेस्ट जब आते हैं तब साफ सफाई करते हो, या घर में जब कोई नहीं होता है तब साफ सफाई करते हो? नीडलेस टू से, घर में जब कोई नहीं होगा तब आप साफ सफाई करते हो, राइट?
सो इन द सेम वे जब माइंड को कोई काम नहीं होता है, जब आप सोते हो तो माइंड का सारा क्लीनिंग, माइंड में सारी चीज़ें जो भी केमी वेस्टेड मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है लाइक एडिनोसिन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारा क्लीनिंग, सारी क्लीनिंग कब होती है, जब आप सोते हो। सो अगर जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आप ये सोओगे ही नहीं तो ये क्लीनिंग होगा क्या? योर माइंड विल नेवर फील फ्रेश अगर आप स्लीप अच्छे से सोते नहीं हो तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा। अब दुनिया के मोस्ट डेंजरस डिजास्टर जो हुए थे, दिस इज अ चेरनोबिल इंसिडेंस। ये चेरनोबिल इंसिडेंस था, चेरनोबिल इंसिडेंस, इट इज़ इन यूक्रेन। इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सप्लोजन हुआ था चेरनोबिल में, यूक्रेन में। ये क्यों हुआ था? बिकॉज द पर्सन हु वॉज इन कंट्रोल ही हैडंट हैव अ गुड स्लीप। उसने एक ही वॉज लैकिंग स्लीप, उसको उस ढंग से सोया नहीं था, तो ये चेरनोबिल इंसिडेंस हो गया। एंड इट इज़ इन द हिस्ट्री, यू कैन गो ऑन द, यू कैन गूगल इट अबाउट इट, यू विल अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कितना भयानक था ये। सेकेंड, ये अटलांटिक ओशन में 2007 में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 300 लोग मर गए थे। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि पायलट जो था, पायलट की नींद ढंग से नहीं हुई थी। तो इट अफेक्ट्स द योर एंटायर परफॉर्मेंस इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल। One thing which is very important to remember over here is this, there is no sleep cycle काफी ज्यादा important होता है rather than the amount of sleep। आप अगर ऐसा, there is nothing called a sleep compensation। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं आज रात को नहीं सोऊंगा और वो जो नहीं जो सोया नहीं हूँ वो दूसरे रात को कंप्लीट कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्लीप कंपेंसेशन। स्लीप साइकिल इज इंपॉर्टेंट, वो साइकिल को मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सुबह अगर आप रात को अगर आप 11 बजे उठते हो तो सुबह 6 बजे उठना, ये साइकिल मेंटेन होना चाहिए। ये साइकिल जितना ज़्यादा मेंटेन होगा उतना आपका मेमोरी शार्प होगा, उतना आपका लाइफ हेल्दी होगा। इसका इम्पैक्ट थ्रू आउट योर लाइफ दिखेगा आपको इन एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ। सो यू कैन से कि जैसे मोबाइल को फंक्शन करने के लिए चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, मोबाइल बिना चार्जिंग के काम नहीं करेगा। इन द सेम वे आपका चार्जर है, आपका चार्जर क्या है, लेट मी इरेज। इन द सेम वे आपको भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, और आपका चार्जर इज नथिंग बट आपका स्लीप। व्हेन यू स्लीप योर माइंड रिचार्ज, इट इनविगोरेट इटसेल्फ, कंप्लीटली न्यू हो जाता है, कंप्लीटली फ्रेश हो जाता है, एंड इट गेट्स रेडी टू फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड। सो दिस इज द थिंग। I hope you understand whatever I am trying to convey. Thank you for watching this video. You can connect with me through this Instagram. This is my channel, Life School. You can, if you like this video, don't forget to like it, subscribe it, share it. Thank you guys. That's it for today. Thank you. Thanks a lot.